Dear students of class 11th, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप जानते हैं कि हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं गैसेस की स्टडी कर ली और हमने देख लिया जो गैसेस हैं दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। सपोज gases expand upon heating. When we apply pressure on a gas, then the gas get compressed. That means they are compressible. In the same way, gases, when compressed and cooled, they get liquefied. Just liquefaction takes place. As compared to solids and liquids, gases have low density, and we also know that when gases are intermixed, they get diffused. They show the property of diffusion and also the property of effusion. तो इसी तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ गैसेस की हैं। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं दे आर एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टीज़। दीज आर ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। इसके अलावा हमने देख लिया कि जो गैसेस हैं दे फॉलो सर्टन लॉज, जिसमें बॉयलर्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, गेलास्कस लॉ है। इसी तरह से आपने डाल्टन्स लॉ पढ़ लिया, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये सारे के सारे लॉज जो हैं दे आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। दे आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो कुछ हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं इसके पीछे हम थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो गैसेस हैं, क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ गैसेस में हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को सपोर्ट करने के लिए एक थ्योरी की ज़रूरत थी। वो थ्योरी सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने पेश की, उसका नाम है बर्नौली। तो बर्नौली ने पहली बार कोशिश की इन द ईयर 1738 to provide a theoretical background to the various observed and experimental properties of gases, and this concept of Bernoulli was later on completed, or it was rather improved by Colossus in 1857. Colossus in 1857, and the concept provided by Colossus, the theory provided by Colossus, is called as kinetic molecular theory of gases. Kinetic molecular theory of gases. ये नाम इसलिए इस थ्योरी को दिया गया है क्योंकि इस थ्योरी के मुताबिक ये एज्यूम किया जाता है कि जो गैसेस हैं दे आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। Gases are made up of large number of molecules, and these molecules are constantly in motion. They are constantly in motion. So it is because of this ceaseless motion possessed by the molecules of gases, the theory is called as kinetic molecular theory of gases. और ये जो थ्योरी है इसको डायनामिक पार्टिकल मॉडल भी कहते हैं। It is also called as dynamic particle model. Dynamic particle model of the gases. इसी तरह से इस थ्योरी का एक और नाम है माइक्रोस्कोपिक मॉडल। माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ गैसेस। ये जो डायनामिक पार्टिकल मॉडल जो है ये इसलिए से कहा जाता है क्योंकि जैसे हमने बता दिया कि ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है इसमें हम कंसिडर कर रहे हैं कि गैस जो है ये मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, पार्टिकल्स का बना हुआ है। इसीलिए
पार्टिकल नेचर होने के सब इसे डायनामिक मॉडल भी कहते हैं। और अब ये जो पार्टिकल्स हैं, दे आर सो स्मॉल दैट दे आर इनविजिबल टू द नेकेड आई। बिकॉज ऑफ दैट रीजन, because of their invisible nature, this theory is also called as microscopic model of theory. So today we will see the various postulates of this kinetic molecular theory of gases, which we also call dynamic model, dynamic particle model, or microscopic model. So let us see the various postulates of kinetic molecular theory of gases, KMT, और माइक्रोस्कोपिक मॉडल। तो सबसे पहला पोस्टुलेट जो इस थ्योरी का है वो है दैट एवरी गैस इज मेड अप ऑफ, एवरी गैस, हर एक गैस पे अप्लाई है, एवरी गैस इज मेड अप ऑफ a large number of extremely small particles, extremely small particles called molecules। फिर से देखिए हमने क्या लिखा, every gas is made up of a large number of extremely small particles called molecules. All the particles of a gas, all the molecules of a particular gas, all the molecules of a particular gas are identical in mass and size, are identical in mass and size, and differ in these from gas to gas. All the molecules of a particular gas are identical in mass and size and differ from other gases in these properties. इसका मतलब ये हुआ एक पर्टिकुलर गैस जो है इसके पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सारे के सारे एक जैसे हैं, इनका मास एक जैसा है, इनका साइज एक जैसा है। अब अगर हम इस एक गैस के मॉलिक्यूल्स या एक गैस के पार्टिकल्स दूसरे गैस के पार्टिकल्स के साथ कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो गैसेस हैं उनके पार्टिकल्स का मास और साइज एक जैसा नहीं होगा। एक पर्टिकुलर गैस के मॉलिक्यूल्स एक जैसे होते हैं, जैसे हम हाइड्रोजन गैस लेंगे, हाइड्रोजन गैस जो है इट इज़ मेड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो हैं वो सारे के सारे एक जैसे हैं। अब अगर हम हाइड्रोजन गैस कंपेयर करेंगे हीलियम गैस के साथ, तो हीलियम गैस के जो पार्टिकल्स होंगे उनका मास, उनका साइज जो होगा दैट विल बी डिफरेंट देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। आपस में तो एक जैसे हैं, एक ही गैस के मॉलिक्यूल्स एक जैसे हैं, मगर जब हम एक गैस के मॉलिक्यूल्स को दूसरे गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, स्पेशली इन मास एंड साइज। तो ये पहला पोस्टुलेट था। दूसरा पोस्टुलेट जो है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस, the molecules of a gas are separated from each other. The molecules of a gas are separated from each other by large distances. By large distances, so that the actual volume, of the molecule, is negligible as compared to the total volume of the gas, as compared to the total volume of the gas। important postulate है, important assumption है। The molecules of a gas are separated from each other by large distances। जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो हैं इनमें जो बेसिक डिफरेंस है दैट इज़ इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स।
सॉलिड्स में पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड्स में पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं, और जहाँ तक गैसेस का ताल्लुक है वहाँ पर हमने पढ़ा है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। वो एक दूसरे के मातहत नहीं होते हैं, जिसको जहाँ चाहे मर्जी चला जाता है। इन एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के दरमियान कोई अट्रैक्शन नहीं है, नेग्लेजिबल अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। जब पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा है तो जो ओवरऑल वॉल्यूम जो गैस का, जैसे हमने पढ़ा है कि आप गैस को किसी भी बर्तन में रखिए, उस बर्तन की जितनी कैपेसिटी है, चाहे उसमें गैस कम है या ज़्यादा है, वो सारा गैस कंटेनर भर जाता है गैस मॉलिक्यूल से। इसका मतलब हुआ अगर हम एक बड़े कंटेनर में थोड़ा सा गैस भी लेंगे, उस थोड़े गैस से वो सारा कंटेनर भर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस बड़े कंटेनर में ये थोड़ा सा गैस जो है, इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। तो यहाँ पर भी हमने यही बात कही है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय लार्ज डिस्टेंसेस। तो जब लार्ज डिस्टेंस आ गई बिटवीन द पार्टिकल्स, तो एक पार्टिकल का जो अपना वॉल्यूम होगा द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वन पार्टिकल बाय वन मॉलिक्यूल दैट इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो जितना सारे गैस का वॉल्यूम है, तो एक पार्टिकल का वॉल्यूम जो है वो सारे गैस के वॉल्यूम के साथ कंपेयर करने के बाद नेग्लिजिबल होता है, ना होने के बराबर होता है। ये दूसरा पॉस्टुलेट है। इसके बाद इसका तीसरा पॉस्टुलेट है द डिस्टेंसेस ऑफ सेपरेशन। द डिस्टेंसेस ऑफ सेपरेशन, द डिस्टेंसेस ऑफ सेपरेशन between the molecules are so large, between the molecules are so large that the force of attraction, that the forces of attraction or repulsion, forces of attraction or repulsion between them is negligible। फिर से देखिए, जैसे हमने पहले कहा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे ज़्यादा होता है जहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं। अब चूँकि गैसेस में पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पे हैं, देयर आर लार्ज डिस्टेंसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस, तो इसी का नतीजा ये निकलता है कि इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तो ये तीसरा पॉस्टुलेट है। इसी नेग्लिजिबल फोर्स होने की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। देयर आर लार्ज डिस्टेंसेस बिटवीन देम, इट इज़ बिकॉज ऑफ वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रादर नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। इसके बाद चौथा पॉस्टुलेट जो है, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन द मॉलिक्यूल्स, on the molecules is also supposed to be negligible. It is also supposed to be negligible। देखिए, गैस के मॉलिक्यूल जो हम जानते हैं, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उसकी वजह से जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, पार्टिकल्स हैं, दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ। तो अब जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स जो हैं, अगर इन पे ग्रेविटेशनल पुल एक्ट करेगा तो उस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़मीन की तरफ, नीचे की तरफ आएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता सारे मॉलिक्यूल सेटल हो जाएंगे एट द बॉटम। तो इसका मतलब है जो गैस है दैट विल सीज टू एग्जिस्ट। फिर गैस मॉलिक्यूल्स मोशन में नहीं रहेंगे, वो स्टॉप होके कंटेनर के बॉटम पे आ जाएंगे। मगर ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पुल इन मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई होता है वो इतना नहीं होता है कि वो इन मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करके ज़मीन पे ला दे या बॉटम पे ला दे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है इस पे जो ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई होता है वो नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल ना होता तो सारे गैस मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता सेटल होते एट द बॉटम, मगर ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से गैस मॉलिक्यूल्स पे जो फोर्स अप्लाई होता है दैट इज़ नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके बाद एक और पॉस्टुलेट है, द मॉलिक्यूल्स आर सपोज्ड टू बी मूविंग कंटिन्यूअसली।
द मॉलिक्यूल्स, इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट है, द मॉलिक्यूल्स आर सपोज्ड टू बी मूविंग continuously. The particles are supposed to be moving continuously in different directions. In different directions with different velocities. With different velocities. Hence they keep on colliding. Hence they keep on colliding with one another. Hence they keep on colliding with one another, called molecular collisions. Molecular collisions, as well as on the walls of the container, as well as on the walls of the कंटेनर और वेसल। फिर से देख लीजिए, द मॉलिक्यूल्स आर सपोज्ड टू बी मूविंग कंटिन्यूसली। जैसे हमने कहा थ्योरी का नाम ही है काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इसलिए काइनेटिक थ्योरी, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय देम इज काइनेटिक एनर्जी, दिस व्हाई थ्योरी इज कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी। तो गैसेस की जो काइनेटिक थ्योरी है वो हमें बता रही है कि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर कंटिन्यूसली मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। तो इसलिए जब ये गैस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं कंटिन्यूसली इन डिफरेंट डायरेक्शंस विथ डिफरेंट वेलोसिटीज, और सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती है। कुछ मॉलिक्यूल्स फास्ट मूव करते हैं, कुछ स्लोली मूव करते हैं। सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती है, मगर मूव सारे के सारे कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो उस मूवमेंट के दौरान, उस मोशन के दौरान ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। दे कीप ऑन कोलाइडिंग विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, एज वेल एज ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल। और जिस बर्तन में, जिस कंटेनर में हमने इस गैस को रखा है, उस कंटेनर की दीवार के साथ भी टकरा। ये तो कॉमन सेंस है, जिस कंटेनर में, जिस वेसल में हमने गैस को रखा है, अब अगर गैस के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो इसमें चांस है ही एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करने का, और इसमें चांस है कि ये कोलाइड करेंगे विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो इसके बाद छठा पोस्टुलेट है, द प्रेशर एक्सर्टेड on the walls of the container, the pressure exerted on the walls of the vessel, on the walls of the vessel is due to the bombardment of the molecules or collision of the molecules, due to the collision of the molecules on the walls of the vessel। यानी जो हम देखते हैं कि गैसेस जो होते हैं वो गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उस वेसल पे, उस कंटेनर पे जिस पे हमने गैस को रखा हुआ होता है। जैसे हम देख रहे हैं कि अगर हम किसी बैलून में गैस भरते हैं, तो जितना हम ज़्यादा गैस भरते हैं उतना ही वो बैलून ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है। एक्सपेंशन इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो गैस मॉलिक्यूल्स इस बैलून में होते हैं वो कंटिन्यूसली स्ट्राइक करते हैं विद द वॉल्स ऑफ द बैलून। और अगर हम इसमें ज़्यादा गैस भर देंगे तो ज़्यादा कोलिजन्स होंगे, तो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो कभी कभी इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि ये जो वॉल ऑफ द बैलून है ये इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो जिसकी वजह से बैलून फट जाता है। तो इस तरह से ये जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द कोलिजन्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये छठा पोस्टुलेट था। उसके बाद सातवां और लास्ट पोस्टुलेट जो है, द मॉलिक्यूल्स आर सपोज्ड टू बी perfectly elastic hard spheres। the molecules are perfectly elastic hard spheres, so that no energy
is wasted when the molecules collide, so that no energy is wasted during collision with one another or with the walls of the container. The energy may, however, be transferred from one molecule to another. The energy may be transferred from one molecule to another. Important postulate है, from one molecule to another. फिर से देखिए, the molecules are perfectly elastic. यानी जो ये मॉलिक्यूल्स जिससे ये गैस बना हुआ है, इनके जो कोलिजन्स हैं, मॉलिक्यूल जो है ये इलास्टिक मॉलिक्यूल्स हैं, हार्ड स्फीयर्स हैं. जब ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो इस कोलिजन के दौरान इनकी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है. यानी मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है कोलिजन के दौरान, इस एनर्जी में न कोई इजाफा होता है और न इस एनर्जी में कोई कमी होती है. क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो कोलिजन के दौरान अगर सपोज एनर्जी कम होती तो फिर एक वक्त आ जाता, एनर्जी कम होते होते ऐसा होता कि फिर ये मॉलिक्यूल मोशन करना छोड़ देते. या ऐसा भी हो जाता कि अगर एनर्जी बढ़ जाती तो बढ़ने की वजह से एनर्जी जब बढ़ जाती तो प्रेशर बढ़ जाता, तो फिर चाहे कितना भी मजबूत कंटेनर क्यों न होता, उस पर जब ज़्यादा प्रेशर पड़ता तो वो भी बर्स्ट हो जाता. मगर ऐसा नहीं होता है. तो इसलिए जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं, तो कंटिन्यूसली मोशन में रहने के लिए ज़रूरी है कि इनकी एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए, और वो होती भी नहीं है. हाँ, एक चीज़ होता है कि जब दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, इस कोलिजन के दौरान एनर्जी जो है ये ट्रांसफ़र हो सकती है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर. जिस मॉलिक्यूल में ज़्यादा एनर्जी है, कोलिजन के दौरान वो उस मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकता है जिसके पास कम एनर्जी मौजूद है. तो इस तरह से ये 7 पोस्टुलेट्स हैं. ये 7 पोस्टुलेट जो हैं, इट मेक्स काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ gases. So for today it is sufficient. Thanks very much. Inshallah, from tomorrow we will move ahead.